Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Shandana Kabir and welcome to Female Freelance Club at day 2. As yesterday we have studied about content writing as well as about the how we can earn money from it, as well as what are the principles or the rules that we should follow, and how we should improve our writing, our reading skills, our communication skill, and our language and vocabulary as well, and how we should avoid a scheme. So all these points we have highlighted in the previous lecture as well. It was a short intro, but still there was a lot of for you guys, that you can easily weaves all this information, understand it clearly, and then apply on your content writing. But in this class we will mainly focus on the content writing, that how the content writing, that which type of content writing the customer demand, and how you will make your writing effective. What are those steps, what are the principles, what are the strategies that you are going to use for your writing, what are the main thing that you keep in your mind before writing your article, and while after you write your article, how you can check out your article by using a Grammarly or online tool, and how you should take out a plagiarism from the same article. In this class we will also study about I will also show you my article where that I have submitted it, but still I have a soft copy of my article. So a rough draft, so I will share that draft with you guys, that how it will, that draft will help you to write your article as well. So now going to start our this class, content writing, communication through words. Okay, so you should to communicate through words, mean your content should be like it should be a communications, like you are in through your content writing you are communicating with your customer, you are communicating with the readers. So you should keep that in your mind, that yes, you are going to communicate with the person that who is reading your content. तो जब आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, सो यू हैव टू यूज़ अ वर्ड्स फॉर दैट. आप वर्ड्स यूज़ करते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए. जब आप कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू वर्ड्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि इफेक्टिव लगे. तो आपका जो कंटेंट राइटिंग होती है वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशंस होती है जो आप थ्रू वर्ड्स करते हैं. फिर हमारे पास इसके कुछ डिफिनीशंस भी है कि वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसे कम्युनिकेशन जो सिर्फ आप कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करें, आप उसको सब कुछ बता रहे, वो तो जस्ट सुन रहा है आपकी कम्युनिकेशन को, वो जस्ट पढ़ रहा है आपकी कम्युनिकेशन को. आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, आपने जो कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो जस्ट उसको पढ़ रहा है. ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स तो नहीं करे, लेकिन हाँ, आपने जो कम्युनिकेशन करे वो इतना इफेक्टिव है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. इंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं. इंस्ट्रक्टिव मीन्स दैट कि वो उसको फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए आसानी पैदा करे. उसको अगर वो पढ़ रहा है उस चीज़ को, अगर वो उसको यूज़ करे तो वो उसके लिए हेल्पफुल है, उसके रियल वर्ल्ड में उसके काम आ जाए, बजाय इसके कि वो उसके लिए नुकसान पैदा करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, या अगर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ उसकी प्रमोशन के बारे में कर रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था, डायमंड के बारे में लिखा था. फिर हमारे पास जो है डायमंड्स, ओरिजिनल डायमंड्स भी होते हैं और कुछ हमारे पास लैब ग्राउंड डायमंड्स भी होते हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज में और बनाए जाते हैं. अब क्योंकि मुझे लैब ग्राउंड डायमंड को प्रमोट करना था, तो मैंने इसके फ़ायदों के बारे में बात की कि हाँ, ये सेम टू सेम उसी डायमंड की तरह है, चीप इन प्राइस है, इजीली अवेलेबल है, और इसके साइज़ भी अच्छे है. नो वन कैन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायमंड. तो मैंने उसी तरह चीज़ उसको लिखी, बजाय इसके कि मैं इसमें जाऊँ कि हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ये करते हैं, इसमें ये होता है, इसमें कार्बन की इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है, ओरिजिनल में तो नाइट्रोजन है. हाँ, ये जो है हमारे पास कलर तो इनका सबका सेम होता है, लेकिन अगर हम उसको ये करें तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा कार्बन. तो ये चीज़ें हमने नहीं बतानी, हमें सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट करना है. तो मैं इंस्ट्रक्टिव ही रहूँगी. मेरे क्लाइंट की डिमांड अगर मुझसे है कि तुमने लिखना है तो वो इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तो मैं इंस्ट्रक्टिव ही लिखूंगी, मैं उसको प्रमोट करूंगी, ना कि रीडर से कहूँ कि और ये पढ़े. पहले तो मैंने उसके फ़ायदे लिखे, लेकिन नीचे मैंने नुकसानात भी लिख लिए. तो क्या वो खाक उस चीज़ को लेगा, वो खाक वो चीज़ प्रमोट होगी? तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है. हैज़ अ फ्लो ऑफ थॉट्स, यू मस्ट हैव अ फ्लो ऑफ थॉट. यू सिंगल, ये नहीं होना कि यू जस्ट jump out from the one idea to another idea. No, you have to be a single idea and you should focus on that single idea.
आप उस सिंगल आइडिया को लेकर ही आप उस पर उसको प्रमोट करोगे, उस सिंगल आइडिया को लेकर ही आप उसको डिस्कस करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, एंड दैट इज़ समथिंग कि वो आपको हेल्प करेगा, और वही है जो आपकी मदद भी कर, और आप इजीली जो रीडर है वो उस चीज़ को इजीली पढ़ भी सकेगा। अगर वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करेगा, फिर दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया पे जंप करेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड ही विल लिफ्ट योर राइटिंग। वो छोड़ देगा, वो कहेगा कि यार इसको तो खुद भी नहीं पता कि क्या लिखना है, इससे सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, क्लियर रहना है। तो क्लियर के लिए आपने सिंपल एक थॉट ही यूज़ करना, एक आइडिया ही यूज़ करना है। स्पेशलाइज स्टाइल ऑफ राइटिंग विच डिफर स्लाइड फ्रॉम जर्नलिस्टिक स्टाइल। मोस्टली जो हमारे पास मुकालमे लिखे जाते हैं अखबारों में, तो वो क्या होते हैं कि उसमें एक मुकालमे में लाजमी आपको 3-4 मसले तो लाजमी हाईलाइट किए हुए होते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल पर्सन जो अवेयर है उससे, जिसको नॉन है ये सारे मुकालमे, इफ़ ही इज़ गोइंग टू रीड दैट आर्टिकल, सो he can easily correlate that thing with each other कि if actually he is discuss about, he talk about the poverty, तो या we are facing poverty, हमारे पास इन एरिया में poverty आजकल बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चल रहा है। if he is discussing about the education, तो या we are suffering from the backward method of education, हम सफ़र कर रहे हैं उसको, हमारे बच्चों के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है एजुकेशन के लिए। तो इसी तरह से अगर आप 3-4 चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट करोगे और उसके बारे में लिखोगे, तो वो चीज़ कन्फ्यूजिंग मिक्सअप हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्पेशलाइज स्टाइल बनाना है अपना, सिंगल जो एक फॉर्मल हो। मोस्टली फॉर्मल इनफॉर्मल हमारे पास ये होता है कि जब हम वीडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो तब हम इनफॉर्मल राइटिंग करते हैं। फॉर्मल ज़्यादातर हम आर्टिकल्स वगैरह वेबसाइट्स के लिए जो करते हैं, या जॉब्स कंटेंट के लिए कंपनीज़ वगैरह के लिए जो लिखते हैं, तो वो फॉर्मल होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक स्पेशलाइज स्टाइल रखने में, जो कि जर्नलिस्टिक स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इट इज़ लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज एंड ग्रेट स्किल। ये क्या होता है, आपका ये जो राइटिंग है, आपका एक पूरा एक डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड इसके लिए होता है, एक ग्रेट स्किल चाहिए होता है। आप एक आर्टिकल में सब कुछ लिखोगे, थोड़ा थोड़ा लिखो, बट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। यू शुड टू हाईलाइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द आर्टिकल। ये नहीं करने कि आपने एक जगह जंप किया, आप वो छोड़ दिया उसको, एक बात अभी मुकम्मल नहीं की थी दूसरी शुरू कर दी। नहीं, आप अगर लिख रहे तो थोड़ा सा डिफाइन कर दो, फिर उसके टाइप्स बता दो, उसके सब टाइप्स बता दो, फिर उसके एग्जांपल्स बता दो कि हाँ ये किस तरह का होता है, कैसे होता है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है तो भी बता दो, फिर लास्ट में जाके आप कंक्लूजन दे दो। तो फुल आप एक फॉर्मेट यूज़ किया करें अपनी राइटिंग के लिए। Tactics and principle of content writing. Content should be clear, powerful and descriptive. आपका जो content है वो clear होना चाहिए, powerful होना चाहिए और descriptive होना चाहिए। If अब जो clear in a sense कि आपने एक ऐसा words या एक ऐसा language यूज़ किया है कि जो बहुत ज़्यादा effective हो, तो obviously वो clear ही होगा। powerful है कि जब वो clear होगा तो वर्ड्स यूज़ आपके पावरफुल होने चाहिए। पावरफुल मीन आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ किया लेकिन एक्यूरेट यूज़ किया है, सही तरह के सही जगह पे यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे ब्लड शेड का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो हाँ मैंने ब्लड शेड को फाइटिंग या एक्शन गेम में यूज़ किया, जहाँ पे फाइटिंग की जाती है, एनिमीज़ को किल आउट किए जाते हैं, इसलिए मैंने ब्लड शेड वर्ड यूज़ किया। अब एक नॉर्मल आर्टिकल में मैं ब्लड शेड तो नहीं कहूँगी ना, मैं कहूँगी एज अ पर्सन इज़ वाउंडेड, तो वो बंदा जख्मी हुआ है, मैं उसकी ये नहीं कहूँगी हाँ वो मर गया है। एज्यूम योर रीडर इंटेलिजेंस। आप जब भी लिखो तो अपने रीडर्स को जहन में रख कर ही लिखो कि हाँ मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे रीडर के जहन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कि अगर ये चीज़ है कि अगर मैंने ये लिखा है तो शायद मेरे रीडर के जहन में हो कि इसके फ़ायदे क्या हों, इसके नुकसानात क्या हों, क्यों करें ऐसा, इसको कैसे इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एयरपोर्ट्स के बारे में लिख रहे हो तो आप अपने रीडर्स को पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे कि ये चीज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं, अब हैंड्स फ्री को रिप्लेस कर दिया गया, इसने रिप्लेस किया है इसने, और ये एक मॉडर्न हमारे पास इन्वेंशन है और इस तरह फला फला। तो आप शायद रीडर के जहन में ये भी आ जाती है बहुत महंगा होगा, तो आप नीचे हेडिंग्स में एक हेडिंग दो, उसमें लिखो कि नहीं ये बहुत मतलब चीप प्राइस पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है। आप लिखो कि हमें कहाँ से मिलेगा। अब आपने जो बता दिया कि बहुत सस्ता है, अब उसके जहन में तो ये भी आएगा ना कि इसको मुझे खरीदना है तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे। तो आप इजीली कह सकते हो कि ऑनलाइन शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर द दराज और अमेज़ॉन, यू कैन इजीली ऑर्डर इट फॉर योरसेल्फ। तो
इस तरह के क्वेश्चन अपने जहन में पैदा करो, अपनी रीडर्स को एज्यूम करो कि यस दे आर लाइक, यू इमेजिन करें कि आपके सामने बैठा है एंड दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड यू आर गोइंग टू आंसर हिम. सो you have to focus on this thing too. What conclusion at the beginning? Think of an inverted pyramid when you rewrite. मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड पैरामिड का एक शेप दिया है. इसको क्यों? ताकि आप जब भी लिखो तो अपने कंक्लूजन को बिगिनिंग पे लिखो. हम कंक्लूजन में क्या करते हैं? हम समराइज करते हैं हमने क्या लिखा है, क्या लिखा और कैसे लिखा और क्या क्या शामिल किया है. तो आप क्या करोगे? अब जब बिगिनिंग में इसको लिखोगे तो आप लिखोगे मैं ये लिखूंगा इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फीचर्स एंड फला फला. फिर उसको नीचे जाके आप एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट कर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द रोल प्ले गेम तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी कि द रोल प्ले गेम इन विच द यूज़र आर आस्क्ड टू क्रिएट देयर करेक्टर, टू सेलेक्ट देयर करेक्टर एंड टू easily play the game by using the amazing gameplay, by using the incredible designs of the incredible graphic design as well as the easy interface of the game and having the best battlefield for the user. अब ये 3 चीज़ें तो मैंने बता दी है, ये तो इसके फीचर्स थे. अब मैंने क्या करना है? अब मैं जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगी तो इन्हीं चीज़ों की हेडिंग्स दूंगी मैं. गेम प्ले, ग्राफिक डिज़ाइन, 3D ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, रोल प्ले गेम, इजी इंटरफेस हो गया है, ये हमारे पास बैटल फील्ड हो गया है, हमारे पास वेपन स्किल हो गए हैं, या फिर हमारे पास फाइटिंग स्किल्स हो गई है. तो ये सारे मैंने क्या कर दी? करेक्टरिस्टिक्स में डाल दी. तो आपने भी कंक्लूजन में ऐसा ही करना है, क्योंकि कंक्लूजन में हम यही करते, समराइज करते. तो इसी चीज़ को आपने बिगिनिंग में, इंट्रो में भी करना है. गेट टू द पॉइंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ देन एक्सप्लेन अपॉन इट. आप जब फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हो तो उसके बाद आप जब आप एक पैराग्राफ पढ़ लो तो फिर दूसरे पैराग्राफ जो है आप स्टार्ट करोगे तो वो एक दूसरा आइडिया होगा. राइट, ओनली 1 आइडिया पर पैराग्राफ. एक पैराग्राफ में एक आइडिया तो दूसरे पैराग्राफ में दूसरा आइडिया. और आप जब पैराग्राफ स्टार्ट करो तो आपको जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए दैट शुड कवर ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर यू गोइंग टू डिस्कस इन दिस पैराग्राफ. आप इस पैराग्राफ में लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल डिस्कसिंग अबाउट द 3D ग्राफिक डिज़ाइन, तो मैं क्या करूँगी? मैं फर्स्ट लाइन में लिखूँगी द क्रिएटर क्रिएट द ग्राफिक ऑफ दिस गेम, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि द क्रिएटर क्रिएट द 3D ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ द गेम. अब नीचे मैंने क्या लिखना है? मैंने नीचे लिखना है टू गिव इट अ रियलिस्टिक टच टू द गेम टू अपील द साइट ऑफ द यूज़र. ये 3 चीज़ें मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख ली, लेकिन पहले मैंने क्या किया कि 3D ग्राफिक डिज़ाइन उसने दिया है, तो इन्फॉर्मेशन तो मुझे यही चाहिए था. अब क्यों किया इससे तो मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन फिर भी अपना पैराग्राफ मुकम्मल करने के लिए मैंने ये चीज़ उसमें डाल दी, एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको. तो आपने भी ऐसा ही करना है. आपका जो फर्स्ट लाइन हो वो इन्फॉर्मेटिव लाइन होना चाहिए, नीचे इट शुड बी एक्सप्लेनेटिव. उसको आप एक्सपेंड कर दो, उसको एक्सप्लेन कर दो कि क्यों ग्राफिक डिज़ाइन दिया, कैसे दिए, किस पर्पज़ के लिए 3D ग्राफिक यूज़ किया है उसने. फिर एक के पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. नॉर्मली आपको आपने ऐसे को अवॉइड करना है. मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो 7 लाइन्स, 8 लाइन्स, 6 लाइन्स पैराग्राफ लिखते हैं, तो उससे वो पैराग्राफ नहीं, वो ऐसे ज़्यादा दिखता है. तो यू शुड अवॉइड दैट लॉन्ग पैराग्राफ. आपका पैराग्राफ शुड बी 3 to 4 लाइन्स, क्योंकि वो दैट गिव वेरी इम्प्रेसिव साइड टू द रीडर. लाइक वो इतना अच्छा लगता है जब आप छोटे से पैराग्राफ यूज़ करते हैं और उसमें आप सब कुछ डाल देते हो. अगर आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है सो गो फॉर द सेकंड पैराग्राफ, राइट द सेम पैराग्राफ. As nowadays I'm following the format where I'm writing a paragraph of 3 lines, and for the 4 line if I jump for the 4 lines so I'm allowed to write just 2 or 3 words in the 4th line. दो लाइक मुझे सिर्फ ये चीज़ फॉर्मेशन इस आप अभी जो मैं फॉर्मेट फॉलो कर रही हूँ तो उसमें मुझे ये कहा गया कि योर पैराग्राफ शुड बी 3 लाइन्स नॉट अ 4. अगर आप फिर भी 4 एक वर्ड है, अगर वो 3rd में नहीं आ रहा है, 4 में जंप कर रहा है, तो सिर्फ 2-3 वर्ड्स आपने 4th लाइन में लिखने हैं, लेकिन ज़्यादा पैराग्राफ को लंबा नहीं करना है. तो आपको भी ये चीज़ जहन में रखनी है. ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं खुद अभी मैंने किए हैं, जो क्लाइंट्स ने मुझसे डिमांड की और मैंने खुद फॉलो किए, तो वो मैं यह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ.
एंड टू द पॉइंट। आपका पैराग्राफ टू द पॉइंट होना चाहिए, बस जो चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं बस उसी को ही डिस्कस करें। डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। यहाँ को कोई 9-10 का पेपर नहीं है जो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे तो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क। आपको उतनी ही पैसे मिलेंगे जितने आपको उन्होंने कहा है, तो बेहतर होगा कि अच्छा मटेरियल उनको दे ताकि आपको और काम दिया जाए। यूज़ लिस्ट इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। कोशिश करें कि आप लिस्ट लिखें इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग यू फॉर द फीचर्स, तो डोंट गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर, जस्ट राइट इट इन योर इन अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस अगर कहाँ पे है तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं कि द यूज़र कैन यूज़ द 3D ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ द गेम। सेकेंड में आप लिखे दिस गेम इज बेसिकली द रोल प्ले गेम। फिर नीचे लिखे दैट इज द क्रिएटर द डेवलपर और द क्रिएटर यूज मॉडर्न वेपन्स इन दिस गेम फॉर टू कैच द अटेंशन ऑफ द यूज़र। तो आप ये भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसकी अलग हेडिंग्स दे, फिर आप करेक्टरिस्टिक्स में कर सकते हैं, लेकिन आप लिस्ट पर वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पैराग्राफ पे जाए। कंटेंट शुड बी सच दैट द रीडर फील दैट दे आर रीडिंग समथिंग न्यू एंड एक्यूरेट। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि आप न्यू करें। आप एक चीज़ जो लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लिख रहे हो, ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है। आप अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है तो लाजमी आप उसको सर्च करोगे गूगल पे। गूगल पे किसने लिखा है? बाकी राइटर्स ने लिखा है, अब सब ने लिखा है। तो आपके जहन में ये कि हाउ माई आर्टिकल विल बी रैंक ऑन द गूगल एज वेल एज देयर अ लॉट ऑफ द राइटर हैव रॉट ऑन द सेम टॉपिक ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो कैसे मेरा वाला रैंक करेगा? तो आपने क्या करना है, आपने चेंजेस लानी है उसमें। क्या कर, आप 5-6 आर्टिकल्स इजीली पढ़ लो तो आपके जहन में एक ड्रॉप बन जाएगा, तो आप फ़ौरन वो ड्रॉप अपने लिए लिख लें और उसी पे ही अपने इन्फॉर्मेशन को पुट करें। तो उससे जो रीडर है उसको वो न्यू लगेगा, एक्यूरेट लगेगा। उन वर्ड्स को ना यूज़ करें जो उन्होंने यूज़ किया, अपने वर्ड्स यूज़ करो, एक्यूरेट यूज़ करो ताकि उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। Use words which are normally spoken, not the ones that the reader need to have dictionary in hand while reading your content. मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, पहले मैं और फिर आप। हम हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो कि इजीली हमारे पास अवेलेबल हो, which कि without going for the dictionary, without going to search the word in the dictionary, we go for that content which can easily understandable to us. Up go for that article, so you should use a normal word, that was which we are normally using in our speaking. When we are communicating we use the word, so use that words in your content too. So don't go for the difficult words, okay? So that will give it's an odd sound and no one is going to read your article if you are using a difficult words, a very difficult words. इंक्लूड इंटरनल सब हेडिंग्स। हम हेडिंग्स तो लिख लेते हैं बट यू मस्ट इंक्लूड अ सब हेडिंग। सब हेडिंग्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आप अगर कोई पूरा कंटेंट पढ़ना भी नहीं चाहता तो अगर वो सिर्फ हेडिंग्स पढ़ ले तो भी उनको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि और चीज़ इसमें ये चीज़ है और ऐसा है। तो आप सिर्फ क्या है, सिर्फ हेडिंग्स लिखे, थोड़ा थोड़ा सा इन्फो करें, तो आपको सब हेडिंग्स लिखो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा बेहतर भी लुक देता है। Clear title, avoid slang and jargons and be painfully clear about what you are talking about. आप difficult words को avoid करें। एक्स्ट्रा अगर आप करोगे तो उससे क्या होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा लाइक मतलब कि वो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टाइटल दे रही हूँ और वो टाइटल है कि मैं उसका एक डिफ़िकल्ट वर्जन भी दे रही हूँ और मैं उसका एक सिंपल वर्जन भी दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि which type of steps should be used by a girls or by a person to beautify their self. हाँ, अब ये टाइटल है थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अब मैंने दिए तो मेरे लिए तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपको तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ और वर्ड्स ब्यूटीफाई लेकिन अब मैं इसका एक सिंपल वर्जन अगर बता दूँ तो वो सिंपल वर्जन क्या है कि 3 स्टेप्स। आपने उधर बात की ना कि हाउ टू यूज स्टेप्स, विच टाइप ऑफ स्टेप्स शुड बी दे यूज, तो लिखो 3 स्टेप्स या इम्पोर्टेंट 3 स्टेप या लिखो कि पॉपुलर 3 स्टेप्स या इम्पोर्टेंट 3 स्टेप्स टू यूज फॉर योर ब्यूटी या 3 स्टेप दैट कैन इंक्रीज योर ब्यूटी।
सिर्फ पहले ये लिखो कि 3 स्टेप दैट कैन इंक्रीज योर ब्यूटी। तो आपने सिंपल टाइटल ले लिया, दैट कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड मी टू। अब अगर ये जो पहला वाला टाइटल है, अगर ये मैं भूल भी जाऊँ तो फिर मेरे अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, कब फिर मैं खुद भी कंफ्यूज होंगी कि ये क्यों दिया है मैंने। तो इसलिए आप क्लियर टाइटल दो ताकि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। While ending, wrap up the subject too as to keep the reader intact। आप जब वाइंड अप कर लो तो ऐसे वाइंड अप करो कि ताकि रीडर को उसको वो उस चीज़ के साथ वो कनेक्टेड हो, वो खुद ही, मतलब अगर वो वाइंड अप कर रहे तो उसको खुद पता चल जाए कि और ये चीज़ें ऊपर मैंने पढ़ ली, इसको हाईलाइट कर ली और अब मैं इसको और मतलब इस चीज़ को अब मैं क्या करूँ, अब रैप अप कर रहा हूँ, इसको एंड अप कर रहा हूँ। प्रोवाइड कंक्लूजन, जब आप लिखो तो आप उसको एक प्रोफेशनल कंक्लूजन भी दो। आपका कंक्लूजन भी 3-4 लाइन्स ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो बड़े हाफ पेजेस और 1 पेज कंक्लूजन लिखते हैं तो वो थोड़ा और लगता है, अजीब लगता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। प्रूव रीड योर कंटेंट, टाइपिंग एंड स्पेलिंग एरर विल सेंड पीपल अवे फ्रॉम योर पेजेस। ओके, ज़्यादातर आप जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो एक ओड साउंड देता है, तो आपने उस चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके लिए आपने ऑनलाइन टूल्स यूज़ करते हैं और वो ऑनलाइन टूल में आजकल नहीं बल्कि मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है ग्रामरली टूल। इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च आई वाज यूजिंग अ ग्रामरली टूल ताकि मेरा रिसर्च जल्दी से हो जाए, इसमें कोई मिस्टेक्स ना निकले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से मेरा रिसर्च की अप्रूवल भी आ चुका है, उसको चेक भी किया गया है, सो देयर वाज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिकॉज आई वाज using Grammarly during when I was writing my research, and the same Grammarly I'm also using while I'm writing my articles or something else, क्योंकि उसी चीज़ ये होता है कि उससे आपके सारे मिस्टेक फाइंड आउट हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। फिर यू डू नॉट नीड टू गो फॉर द अडल्ट, यू डू नॉट नीड टू गो फॉर द एक्स्ट्रा रीडिंग ऑफ दैट आर्टिकल। आप इजीली उस चीज़ को करते ग्रामरली से चेक करके हो जाता है। रीड अ कंटेंट अलाउड, आप जब भी लिखो तो उसको तेज़ आवाज़ से बोले। अगर आप जब ऊंचा बोलते हैं, उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो वो उससे क्या होता है कि यू कैन ईजिली यू कैन hear your sound, your words, that how it sound, the words that you used, the words that you mix up or the words you mix up, that either is giving a sound better or not. If it is a sound better, then it is a correct. But if you think that something is missing, then go to fill that gaps. Okay, so you should read your article aloud before submitting or before publishing. If you are going to publish it on your website or some other website, so first go for to read it aloud, then after that hand over to the customer. Before you start writing, जब लिखो तो उससे पहले आप लोगों ने ये 2 चीज़ें लाजमी करनी है। आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द कंटेंट, आप क्यों लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, क्या मकसद है आपकी राइटिंग का। सो यू शुड गो फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ योर गोल। आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई करना है कि आई एम गोइंग टू राइट दिस आर्टिकल और मेरे ये गोल है और मैं इस वजह से इसको लिख रहा हूँ। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ कि मैं अगर लिख रही हूँ कि मुझे प्रमोशन करनी है किसी चीज़ की, तो मैं उसके फ़ायदों के बारे में लिखूँगी कि हाँ मेरा मकसद जो लिखना है, तो मैं इस एयरपोर्ट्स को या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमोट कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसके बेहतरी के बारे में लिखूँगी। मैं हर उस चीज़ के बारे में लिखूँगी जो इसके फ़ायदे में आ रहा है, जो इसको हमें फ़ायदा दे रहा है, बजाय इसके जिसके नुकसानात हैं। मैं इसके नुकसानात की तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इसकी प्रमोशन कर रही हूँ। मैं अगर इसका नुकसान करूँगी तो मेरे प्रमोशन का बड़ा ख़र्क हो जाएगा। सो दैट्स वाई we will go for those words that will become in the favor of that electronic media. तो आपने अपना गोल आइडेंटिफाई करने कि for which purpose you are going to write this article, what is the main purpose of your writing, why you are writing this article. So you should have a main goal for your content. Decide on a hook. हुक हमारे पास क्या होते हैं, जब हम फिशिंग करते हैं ना, तो हम एक हुक जिसे हम कुंडा बोलते हैं, या फिर हम उस हुक को पानी में डालते हैं ताकि वो उसे हम मछलियाँ पकड़े और पकड़ते हैं और इसीलिए पकड़ भी जाती है। तो हुक का मतलब क्या है कि हम एक जाल बिछाते हैं मछलियों के लिए। तो आपने भी अपनी राइटिंग को यूज़ करके एक जाल बिछाना है रीडर के लिए, उस रीडर को कैच करने के लिए,
उसको पकड़ने के लिए कि हाँ वह सिर्फ आपका ही कंटेंट पढ़े। सो यू शुड डिसाइड ऑन अ हुक। आपने उस पर फोकस करना है कि आपका रीडर आपका ही कंटेंट पढ़े, उसको सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले, बजाय इसके कि वो दूसरी जगह जाए। नाउ व्हाट आर द पिलर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग? सतून क्या है इसके? द फर्स्ट वन इज एडिटोरियल, टोन स्टाइल, क्रिएटिविटी, क्लाइंट ब्रीफ। सो एडिटोरियल पे मोस्टली हमारे पास लैंग्वेज आता है, ग्रामर है और वोकैबुलरी आती है कि आपने लैंग्वेज क्या यूज़ किया है, आपका ग्रामर, आपने ग्रामर करेक्ट ग्रामर यूज़ करे हो कि नहीं, मतलब मिस्टेक्स है कि नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है कि नहीं है। वोकैबुलरी सिंपल है कि डिफ़िकल्ट यूज़ की है, आपका यूज़ ऑफ वोकैबुलरी लेवल क्या है। तो उस चीज़ को एडिटोरियल हम कहते हैं कि आपने इन चीज़ों को पहले फोकस करना है कि हाँ मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरा लैंग्वेज ये है, मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो ऑलरेडी ठीक हो रहे, ग्रामरली में वोकैबुलरी है, मैंने सिंपल वोकैबुलरी यूज़ करनी है। तो दैट्स इट। फिर हमारे पास टोन में आता है कि टोन स्टाइल आपका क्या होना चाहिए। आपका टोन प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, आपको पता है कि आप एक लिख रहे हो, आप प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, आप एक कस्टमर के लिए लिख रहे हो, एंड यू आर स्पेशली हायर्ड फॉर दिस जॉब, सो यू शुड गो फॉर द प्रोफेशनल राइटिंग, कॉर्पोरेट अलाइक। तो आप जब लिख रहे हो तो वो कॉर्पोरेट होना चाहिए ताकि उसको हेल्पफुल हो, वो उसके लिए मददगार साबित हो। आपको पता होना चाहिए कि आप ये लिख रहे हो किस लिए लिख रहे हो, ताकि उसको मदद मिले, उसको अगर वो उस चीज़ को यूज़ करे तो उसके लिए आसानी पैदा करे। तो ये चीज़ आपका टोन स्टाइल ऐसा होना चाहिए। फ्लावरी मीन लैंग्वेज, मोस्टली द फ्लावरी लैंग्वेज इज़ यूज इन द पोइट्री। हम जब शायरी करते तो उसमें एक लैंग्वेज यूज़ होता है, पोइट्री लैंग्वेज, एंड दैट इज़ वाई दैट लैंग्वेज अपील अस। मोस्ट ऑफ अस लव पोइट्री बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज। हमें अच्छा लगता है कि हम शेर पढ़े सुने, हम सुनते भी है पढ़ते भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लैंग्वेज इतना अच्छा यूज़ किया होता है, सेम वही अल्फाज होते हैं, सेम यही अल्फाज होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको इस्तेमाल अच्छे से किया होता है। अभी मैं यहाँ पे एक शेर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी एक शेर यहाँ पे मैं शेयर करूँगी ताकि आप थोड़ा आसानी हो कि सेम है। अब यहाँ पे उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जगने वालों जैसी। तो अब दिस आर द सेम वर्ड्स, आप देख सकते हो उसकी आंखें उसकी, सोने वाले, ये जगने, तो दिस आर नॉर्मल वर्ड्स विच वी आर यूजिंग इन आवर लैंग्वेज, विच वी आर यूजिंग इन आवर स्पीकिंग, नॉर्मल स्पीकिंग कम्युनिकेशन। बट स्टिल शायर ने उसको ऐसे फ्लावरी अंदाज से लिखा है कि डेट अपीलस, कि हमें अच्छा लगता है इसको पढ़ना, हमें अच्छा लगता है कि हम इसको सुने। तो आपने भी फ्लावरी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना है। लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज़, आप वोकैबुलरी किस लेवल की यूज़ कर रहे हैं। अगर डिफ़िकल्ट है तो अवॉइड इट, मत लिखें। अगर आसानी से लिख रहे, सिंपल लिख रहे तो इट्स बी बेटर, लेकिन कोशिश करें कि चीप वर्ड्स भी ना लिखें। आपका वोकैबुलरी लेवल मीडियम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं और ज़्यादा चीप भी नहीं। चीप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब नेक वर्ड है तो नेक इज़ यूज फॉर द घोड़े का बच्चा, बट स्टिल नेक इज़ आल्सो अब्यूसिंग वर्ड, ये गाली भी है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आप घोड़े के बच्चे के लिए अगर कोई और वर्ड है तो उसको यूज़ करें बजाय नेक पे जाने के। टारगेट ऑडियंस, आपके काम का मतलब क्या, आपने सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करना है। आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो टोन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा पढ़ रहा है तो उसको क्या कैसे लगेगा, तो उसके लिए लिखो। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो देन इट मस्ट बी इनफॉर्मल, क्योंकि वीडियो स्क्रिप्ट हमेशा इनफॉर्मल हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं और हमारा स्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर्मल होता है। फिर हमारे पास है क्रिएटिविटी में हमारे पास क्या होता है, इंगेजिंग। आपका आर्टिकल इंगेजिंग होना चाहिए ताकि वो रीडर को इंगेज करे, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करे, उसको इंटरेक्टिव लगे, वो उससे उसको मतलब कि फोर्स करे कि दे शुड रीड योर आर्टिकल, उस चीज़ को फोर्स करे। यूनिक एंड फ्रेश, क्योंकि आपको पहले भी मैंने ये बात बताई और अभी मैं यही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ आप उस टॉपिक के बारे में नहीं लिख रहे हो, आपसे पहले लाखों लोगों ने लिखा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि योर आर्टिकल शुड बी रैंक ऑन द गूगल। सो इसके लिए यू शुड राइट अ यूनिक एंड फ्रेश
आर्टिकल। अब किस तरह लिखना है, फ़र्ज़ कर अगर एक आर्टिकल जो गूगल पे प्रेजेंट है उसने एक आर्टिकल लिखा है, फ़र्ज़ कर हमारे पास लिखा है एंजाइटी के बारे में लिखा है, तो उसने क्या किया है, वो उसने इंफॉर्मेशन सिर्फ एंजाइटी को बताया कि एंजाइटी क्या क्या है। अब मैं दूसरे आर्टिकल पे गई तो दूसरे आर्टिकल में उसने सिर्फ टाइप्स बताए थे कि हाँ इसके मेन टाइप्स ये हैं। अब कॉजेज़ के लिए मैं तीसरे आर्टिकल पे गई और 4 पे मैं उसके सिम्पटम्स के लिए गई और 5th में मैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए गई। तो क्या किया, लास्ट में मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको एक आर्टिकल में डाल दिया, शॉर्टली डाल दिया बट डाल दिया। तो ये क्या हुआ, इससे मेरा आर्टिकल यूनिक हो गया, फ्रेश हो गया। अब अगर मेरा क्लाइंट या फिर मेरा जो रीडर है वो इसको पढ़ेगा तो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ओ इसने टाइप्स भी बताए हैं, इसने काइंड्स भी बताए, इसने सब हेडिंग्स भी दी है, इसने सारा इन्फॉर्मेशन सिम्पटम्स ट्रीटमेंट ईच एंड एवरीथिंग शी इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल। तो ऐसा होना चाहिए आपका आर्टिकल्स में सब कुछ मौजूद हो। यूजेज ऑफ कोटेशन, आप कोशिश करें कि एक जगह पे आपको कोटेशन यूज़ हो सकता है तो आप उसको यूज़ करें, तो उससे थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है आपका आर्टिकल। यूज़ रेफरेंस पॉइंट, for example if you are taking any information from any research that is done in a previous time, so go for the references as well. Say that according to that person he researched on this, that research name on this time, or time ना हो तो आप डेट लिख सकते हो कि on this date, and he says that simple according to that research written by this या researched by this at time लिखो and then the information, तो references लाजमी देनी है। ये नहीं लिखना कि ओ आई हैव फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन, कहाँ से फाइंड आउट किया है, तो रिसर्चर है, कहाँ से रिसर्च किया है तुमने, तो ये आपके पास क्या होता है, या फिर आपके साथ मिस्टेक्स में आ जाता है। तो फिर उस चीज़ को आपने वो फिर आपको वो कहते हैं ना कि गड़िदुल उस्तर गुलाज दी, सो डोंट डू दैट। खुली आंखों पे उसके हाथ ना रखो, उसे ऑलरेडी पता है कि ये रिसर्च हुआ है, उसको सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये तो ऑलरेडी रिसर्च है हुआ है, लेकिन आपने अपने आप से चंगेज़ खान बना दिया और आपने उसको अपना नाम दे दिया। तो नहीं, ये स्कीम नहीं करना, ये एक स्कीम है, एक फ्रॉड है। वो आपके ऊपर कंप्लेन भी कर सकता है, आपका आर्टिकल मुकम्मल ब्लॉक भी कर सकता है, इवन आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। सो डोंट गो फॉर दैट। प्ले इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ करना है। क्या करना है, कुछ एक जगह पे आपने लिखा ना कि वंडरफुल, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, दिस ऑल आर द सिनोनिम्स, बट स्टिल एक लाइन में आपने लिखा कि द वंडरफुल, दिस गेम्स आर द वंडरफुल गेम प्ले, फिर नीचे में लिखा कि ऑल द यूज़र कॉल्ड इज द इनक्रेडिबल वन। दोनों सेम चीज़ें, मैंने वर्ड्स चेंज किए, तो आपने अल्फाज के साथ खिलवाड़ करना है। फिर क्या करना है, अदर हमारे पास है कि मेक योर कंटेंट डिस्टिंक्टिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए ताकि आपको जहन में रहे। डिस्टिंक्टिव बनाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, अलग रखना है दूसरों से, ताकि वो मुख्तलिफ लगे, वो डिफरेंट लगे, अच्छा लगे, बेहतर लगे। रिसर्च इज़ द की, मैंने कल भी बताया था और मैं आप भी बता रही हूँ कि रिसर्च लाजमी करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आपने रेगुलरली जस्ट गो फॉर द 1 आवर ऑफ स्टडी। आप मैं जब भी आर्टिकल लिखती हूँ तो मैं 1 घंटा मुकम्मल उसको स्टडी करती हूँ, सब कुछ जहन में बैठ जाता है, एंड देन आई गो फॉर द राइटिंग। जब फिर मैं लिखती हूँ तो मुझे पता होता है कि और ये चीज़ भी इसमें है, ऐसा भी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक ड्राफ्ट भी बन जाता है और सब कुछ। पहले रिसर्च मुश्किल है, रिसर्च कर लो वही, तो लिखना इज़ वेरी वेरी इजी, यू कैन सिंपली डू इट इन विद इन आवर। आप इसी कर लेते हो, जब आपके साथ इन्फॉर्मेशन है तो फिर लिखना क्या मुश्किल। चैटिंग तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट करते हो दूसरे को तो ईजिली चैट कर लेते हो, टाइपिंग कर लेते हो, तो यहीं पर भी आपने इसी तरह ही करना है। मूवमेंट ऑफ कंटेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, किस तरह करना है। सिंपल आपने इंट्रो से स्टार्ट लिया, फिर आप टाइप्स पे आ गए, आपने लिखा कि हाँ ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स। अब एक टाइप से जिसमें बाकी टाइप सब टाइप्स भी है, सो गो फॉर द सब टाइप्स। तो अब सिंपल टाइप्स पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स, अब सब टाइप्स में और इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, तो वो उसके सब टाइप्स हो गए, तो इट्स गो फॉर द सब टाइप्स। फिर उसके बाद आप जो कि इसके बेनिफिशन क्या है, या इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है। तो अपने आर्टिकल को सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स करोगे। ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट में ही कॉम्प्लेक्स कर दो तो फिर आपको तरीका भी ना है कि उसको सिंपल कैसे करना है। सो गो फॉर द सिंप्लिसिटी एंड देन आप फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ आ सकते हैं।
यूजेज ऑफ हेडर एंड पॉइंटर्स। कोशिश करें कि आप अगर एक चीज़ को लिस्ट में लिख रहे हैं, पॉइंट्स में लिखें, तो पॉइंट्स में ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं जिस तरह मैंने अभी लास्ट में आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं एक करेक्टर फीचर्स को हेडिंग्स में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको क्या करूँ, मैं उसको पॉइंटर्स में लिखूँ ताकि वो ज़्यादा बेहतर लगे। यूजेज ऑफ जार्गन्स। जार्गन्स उससे क्या होता है कि जब आप जार्गन्स को यूज़ करते हैं या फिर जब आप हेडर एंड पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपका आर्टिकल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। मीनिंग कि यू कैन ईजिली कैन लाइक वो रीडर को इम्प्रेस कर लेता है, उसकी जब वो उसके सामने आता है तो उसको अच्छा लगता है, एंड देन उसका दिल चाहता है कि वो उसको पढ़े। तो आपने अपने आर्टिकल को ऐसा ही बनाना है। फिर हमारे पास है कि रीड, ऑब्जर्व एंड राइट। सबसे पहले पढ़ो, खूब पढ़ो और उस चीज़ को एब्जॉर्व करो, जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है उसको एब्जॉर्व करो, एंड देन आफ्टर दिस गो फॉर द राइटिंग। Before reading, before absorbing, don't go for the right. If you haven't any a little information, if a little information is missing, then don't go for the writing. First complete your reading, absorb all the information, and then later on go for the writing. Okay, so this was the information which were basically about the content writing. Now I'm going to share that how you will use a Grammarly and what are the my articles which I have published, but still some examples I have kept with myself to show you. Okay, so ये मेरा एक आर्टिकल है, एंजाइटी इन चिल्ड्रन एंड एडल्सन इन द ट्रीटमेंट ऑफ इट। ये मेरे पास मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एंड यहाँ पे मैंने इसके मेन टाइप्स लिखे हैं डिसऑर्डर्स के, फिर मैंने इसके सिम्पटम्स लिखे हैं, फिर मैंने इसके जो सेपरेशन एंजाइटी उसके सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट के बारे में लिखा है, सोशल एंजाइटी उसके ट्रीटमेंट सिम्पटम्स और सब कुछ लिखा है। फिर हमारे पास जो है साइकोथेरेपी क्या कैसे की जाती है, उसके सिम्पटम्स क्या है, तो ये सारा जो है इसमें क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने किया। और ये मैंने पहले मैं medium.com पे मैंने पब्लिश किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना बनाया। ओके, तो इसमें क्या किया है मैंने और ये मैंने 3/11/21 को पब्लिश किया था। ओके, तो फिर मैंने blogger.com पे अपना फ्रीली एक अकाउंट बनाया, वेबसाइट बनाया है, और अब मैं वहीं पे भी अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करती हूँ। तो ये सारा मेरा है, और मेरा डेटा ऑफ है तो इस वजह से ये आ रहा है। ओके, सो ये मेरा एक आर्टिकल है